الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی اس صورت میں چھوٹی سی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی. اس تھوڑے سے وقت میں ہم ان کو مکمل بیان نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی باتیں، کچھ باتیں تو آئی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ کوثر وہ چھوٹی سی صورت ہے کہ حضور اکرم سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخری صاحبزادے، سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم بچپن میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے دو صاحبزادے اور انتقال کر گئے، لڑکے. سب سے پہلے قاسم نام تھا، اور دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کو طاہر اور طیب بھی کہا گیا. تو یہ دونوں انتقال کر گئے تھے، اور پھر تیسرے صاحبزادے ابراہیم جن کا نام رکھا حضور نے، وہ بھی بچپن کے حالت میں انتقال کر گئے. حضور کو بڑا غم تھا، اور بہت غم تھا، اور ان کی والدہ حضرت ماریہ کو بھی بہت غم تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہلایا، کفنایا اور نماز جنازہ پڑھی. آپ کے اوپر غم طاری رہا. خود آپ نے دفن کیا، قبر میں اتارا، اور پھر قبر مکمل ہونے کے بعد آپ نے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. پانی کا چھڑکاؤ، آج جو قبرستان میں آخر میں ہم پانی چھڑکتے ہیں، یہ حضور کی وہ سنت ہے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. یہ سنت آگے چلی آ رہی ہے، اور ہم لوگ عمل کرتے ہیں، سنت کا ثواب ملتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں، جو بہت سی بدعتیں آ گئی تھیں، الحمدللہ وہ ختم ہو رہی. باقی جو صحیح سنت ہے وہ باقی ہے. تو حضور نے اپنے ان چھوٹے بیٹے کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، دعا کی، گھر آئے تو بیٹے کی والدہ یعنی حضور کی بیوی، امت کی امی جان حضرت ماریہ بہت تکلیف میں تھی، بچے کی بہت یاد آ رہی تھی. تو حضور کو بتایا گیا کہ بہت رو رہی ہیں ان کی والدہ. ادھر آ جائیے، ادھر مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے. تو حضور نے کہلا بھیجا گھر پر کہ ماریہ سے کہہ دو کہ ان کا بیٹا یعنی میرا بیٹا ابراہیم وہ جنت میں ٹہل لے. ماریہ سے کہہ دو کہ وہ جنت کے باغوں میں کھیل کود رہیں، زیادہ فکر نہ کریں. اور اگر وہ دیکھنا چاہتی ہیں یہ منظر کو تو یہاں آئے، ہم ان کو دکھا دیں اللہ کے حکم سے، معجزے کے طور پر. تو جب یہ بات پہنچی ان کے پاس تو کہنے لگے نہیں، میرے آقا نے جو فرما دیا ہمیں یقین ہو گیا، ہمارا ایمان ہے. اب ہم دیکھ لیں گے تو ایمان بالغیب کہاں رہے گا، لہذا دیکھنے کی ضرورت
नहीं है, आका ने फरमा दिया सच और हक है। तसल्ली हो गई। तो वालदा को तसल्ली हो गई, लेकिन इधर पूरा मक्का के बड़े बड़े सरदार, काफिर और मुशरिक, हर गली कूचों में जहां उनके बैठके थे, उन बैठकों में ये बात चली कि देखो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह नहीं मानते थे ना हुजूर को, अब इब्न अब्दुल्ला के बेटे हैं ये, बस नबी नहीं मानते थे। वो नबी मान लेते तो सारा मसला ही हल ना हो जाता। जो मानने वाले थे वो माना उन्होंने। तो ये बातें उनकी दुकानों पर, उनकी बैठक की जगहों पर ये गूंजने लगी कि देखो वो एक लड़का था, आखिरी लड़का, वो भी इंतकाल कर गया और ये अबतर हो गए। हुजूर क्या हो गए? अबतर। अरबी में अबतर उसको कहते हैं कि जिसके कोई औलाद न हो और जिसकी औलाद का सिलसिला खत्म हो जाए। दुम बुरी क्या कहते हैं कि नस्ल उनकी कट जाए, इसको अबतर कहते थे। तो हुजूर का लक़ब उन्होंने अबतर दे दिया कि अब नस्ल खत्म, क्योंकि औलाद ही सारा चीजें लेके चलती है। बाप की सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारा निजाम और सारी दुकान, उनका मैनेजमेंट, सारी बाप का मिशन कौन लेके चलता है? लड़का, औलाद। तो जो हुजूर ई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नया दीन लेकर आए हैं, भैया इन तक है, छोड़ो इनको, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके बेटे हैं नहीं, इंतकाल कर गए, अबतर हो गए, इनका दीन आगे नहीं चलेगा। तो हर गली कूचों में ये बातें हुजूर के बारे में। अल्लाह ने हुजूर को कितना जबरदस्त सब्र, कलेजा दिया था कि हमको, हमारी पीठ पीछे कोई भी कहता हो कुछ, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं। हम छोटे मोटे इंसान, कमजोर, कि अगर हमारे सामने कुछ हमको कोई कह दे, गाली दे दे। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी की बात बता रहा हूं कि शायद कि मैंने किसी को गाली, मुझे याद नहीं, पूरी जिंदगी में अब तक गाली नहीं दी, क्योंकि गाली मुझे सिखाई नहीं गई। तो गाली मुझे याद भी नहीं कि किसी को गाली, और अबे तक कहा हो ये भी मुझे याद, किसी को अबे कह दिया, वो अलग बात है। बच्चे के बारे में, यानी किसी को पढ़ा रहे हैं, शागिर्द के बारे में अचानक निकल गया हो अबे, वरना किसी अदब के लिहाज से बड़े के बारे में नहीं निकला आज तक। ये हमारी जुबान, हमारा शेवा, हम जितना अमल कर पाएंगे करेंगे। वैसे गलती के पुतले तो हम भी हैं, सब लोग हैं। मासूम तो फरिश्ते हैं, मासूम तो नबी, हम कहां मासूम। गलतियां होंगी, लेकिन हमारी गलतियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं, बस ये बात है हम लोगों की। उलमा की, उलमा को आवाम समझती है फरिश्ता हैं, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, और अगर कहीं गलती हुई तो समझो सबसे ज्यादा खराब है। ये मिजाज है इंसानियत का, हालांकि ये गलत मिजाज है। भाई जैसे तुम हो वही, वो अलग बात है, आपको इल्म नहीं दिया गया, इनको इल्म दिया गया। गलती तो दोनों से हो सकती है, खता तो दोनों से हो सकती है, गुनाह तो दोनों से हो सकता है। शैतान जैसे उनके पास आता है, हमारे पास भी वैसे बहकाने के लिए, वसवसे डालने के लिए आता है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमारे आका इमामुल अंबिया का तरीका और हुजूर के अखलाक, हुजूर की शरीयत और हुजूर का लाया हुआ दीन ये कहता है कि दूसरे की गलती के चक्कर में न पड़ो, अपनी गलती देखो बस। हुजूर का फरमान तो यही, हुजूर का दीन तो यही कहता है कि दूसरे की गलती मत निकालो, अपनी गलती। जो अपनी गलती देखेगा, सहाबा ने हमेशा अपनी गलती देखी, दूसरों की गलती नहीं निकाली, अल्लाह ने उनको हुजूर का साथी बना दिया, चमक गए। वो अपने बनाने की फिक्र में रहते थे कि मैं बन जाऊं, मेरे अंदर ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये खराबी निकल जाए। हुजूर बार बार हुजूर से सवाल करते, अल्लाह के पैगंबर, ये मेरे अंदर खराब आदत है, मैं क्या पढ़ूं, मैं कैसे दूर करूं, ये उनकी फिक्र रहती थी। और हमारी फिक्र क्या है? दूसरे में खराब आदत क्या है जरा बताओ। मैं अभी तो इसको हम जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। हमारी आदत ये बन गई, अपना तस्करा कोई नहीं करता। 4 लोग बैठे होते हैं, हम बिल्कुल साफ बात बता रहे हैं, ये हो रहा है हमारे अंदर भी, सबके अंदर भी। 10 लोग बैठे हों
उस मजलिस में बहुत कम सुनेंगे कोई तस्करा कर रहा, भैया जरा बताओ हमारी तहज्जुद नहीं पढ़ रहे हैं, कोई शक्ल बताओ हम तहज्जुद पढ़ने लगे, भैया हमारी नमाज कोताही हो जाती है, कोई शक्ल है कि हमारी नमाज में छूटे, हमें क्या करें, जिक्र नहीं कर पाते हैं, जरा बताओ कैसे जिक्र करें, हमें बताओ कुरान बिल्कुल छूटा हुआ है रमजान से, कोई तरकीब बताओ कि हम कुरान पढ़ने लगे। ये बातें होती, ये तस्करा होता है। होना यही चाहिए था कि जब आपस में बैठो तो जन्नत का तस्करा करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सहाबा की जमात में आते और पूछते क्या वो तुम लोग बातें कर रहे थे, तो सहाबा कहते हम जन्नत का तस्करा कर रहे थे, हम जहन्नम का तस्करा कर रहे थे, हम कुरान का तस्करा कर रहे थे। ये सहाबा की आदत है। अल्लाह ताला हमें उसी आदत को लेने की तौफीक अता फरमाए।